جی جی آپ یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا ہوتا. ابھی میں آپ سے ایک چیز آصف پوچھ رہا ہوں, بھائی آپ مفتی جناب. جی آصف بھائی مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں. جی مفتی جی صاحب شیخ, تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی, کون آئے ہیں جناب؟ جی شیخ, یہ محمد احمد صاحب آئے ہیں, مرزا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے یہ, تو ان سے بات ہو رہی تھی. جی احمد اسٹوڈنٹ صاحب. میں الحمدللہ میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سارے بہت سارے لوگوں کا ہوں. ٹھیک ہے, میں حسن اللہ یاری کو بھی کئی دفعہ سنتا ہوں, میں غامدی صاحب کو بھی سنتا ہوں, اور میں بہت زیادہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں الحمدللہ جو ایک چیز ہے, کوئی بھی چیز اگر سیکھتا ہوں تو میں اس کو جا کے جو قرآن ہے, جو حدیث ہے, میں اس میں سے دیکھتا ہوں کہ اس بندے نے جو بات بولی ہے وہ آیا کہ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو اس طرح سے نہ میں انجینئر کے اوپر آنکھیں بند کر کے کبھی اعتبار کی ہے, نہ ڈاکٹر اسرار پہ کیا ہے, نہ کسی اور پہ کیا ہے. تو الحمدللہ. جی بھائی. صحیح ہو گیا. تو پھر کیا انجینئر صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ سر انجینئر صاحب نا انوں میں کھانے لگے ہیں. دیٹس آل. ہاں تو پھر تو گل مک گئی ہے. تو ہوں اگے کی گل کریے؟ حبیب صاحب تو کہندے سن پہ وہ بڑے وڈے کوئی نہیں نہیں سر, انجینئر. جی سر کتنے ساری تعلقات ہے سر. اندھوں میں کانا میرے راجا, اپنے یہ تو واقعی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے جی ہیں, اس سے تو میں بھی جی جی متفق سر. ہوں. تو بس سر پھر اندھوں سے کانا راجا بہتر ہوتا ہے, اتنی سی ہاں یہ وہ ایک خلاصہ نکلتا ہے. ہاں اب جو کانا ہوتا ہے وہ ہوتا کانا ہی, مگر اندھے سے تو بہتر ہوتا ہے نا. ہاں ایسا ہی, بالکل صحیح بجا فرمایا آپ نے. تو بھائی میرے سے پھر ہمارے ڈسکس لئے کیا حکم ہے پھر؟ مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ایک ڈائریکٹ فتویٰ ادھر سب سے پہلے ایک صحیح تھے یہاں پہ, اور انہوں نے ایک ڈائریکٹ ایک سائڈ پہ مرزا قادیانی جو ہے, غلام احمد قادیانی جو ہے وہ تھا, اور ایک سائڈ پہ انجینئر صاحب جو ہے وہ تھے, اور ایک کو باپ اور ایک بیٹا کا وہ تھا. تو اس پہ میں تھوڑا ساری نا حیرت میں آیا ہوں. انجینئر نے یہ انہوں نے کوئی ویڈیوز دکھائی ہیں, اس نے وہ مذاق میں کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, اس کی ویڈیوز جب بھی کبھی بھی دیکھو تو وہ مطلب اپنا ایک یقین, اپنا ایک بریف بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں کس کو مانتا ہوں. مطلب اس کا ایک یہ بھی ہے نا کہ ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے, بس کوئی پولی پولی آ رہی ہے, آپ کرتے رہیں بات. جی. تو وہ تو یہی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی مانتا ہے, تو اس میں سے کبھی اس طرح کا کوئی مذاق وغیرہ کر کے اس طرح سے اپنے دعویٰ نہیں کیا. اگر وہ کرے گا تو obviously وہ کافر ہے, اس میں تو کوئی دوسرا شک ہی نہیں ہے. یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کرے گا وہ آنکھیں بند کر کے اس کو کافر کہے گا, وہ کافر ہے. یہ ایک مسلمان کا میرے خیال سے ایمان ہونا چاہیے, اتنا تو ہونا چاہیے. تو پھر ابھی کیا آپ ان کو مرزا جونیئر جیلمی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مسلمان سمجھتے ہیں, کافر سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ کانا تو آپ نے بنا دی ہے. کانا تو میں نے کہہ دی ہے, کیوں؟ ہاں جی, کیونکہ اس کی کئی ساری باتوں سے مجھے پرسنلی اختلاف ہے جو میرے پاس موجود نہیں ہے, مگر وہ کئی ساری اس میں کئی ساری احادیث کا اس نے جو جس طرف سے اس نے ترجمہ کیا ہے وہ اس طرف سے نہیں بنتا, کسی اور طرف سے کیا جائے تو کچھ اور بھی بنتا ہے. تو بہت سارے اس کے ساتھ میرے اختلاف ہے کہ میں نے اپنی آبزرویشن کے حساب سے اس کے چلو ساتھ ایسا کر لیتے ہیں اختلافات ہیں. کہ جی جی, احمد صاحب مسلمان تو میں بتاؤں گا. بہت سی چیزوں کے اندر جو آپ کو اختلاف ہے, اور بہت سی چیزوں کو آپ پھر اچھا بھی سمجھتے ہوں گے. جی جی اوبیسلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ایسا ہے 10 چیزیں اگر کیا آپ لکھوا سکتے ہیں, 10 چیزیں جن سے آپ کو اختلاف ہے اور 10 چیزیں جن سے آپ کو اتفاق ہے. اتفاق جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں آپ
7-8 चीजों से होगा, और 7-8 चलें 8 कर लेते और हैं। जो उससे क्या नाम इख्तलाफ होगा वो 2-3 ही होंगे। अच्छा एक मिनट, इख्तलाफ वाली हैं 8 चीजें और नहीं, इख्तलाफ वाली नहीं, उसके हक में 8 चीजें हैं, सॉरी मैंने शुरू में इत्तफाक वाली, इत्तेफाक वाली। इत्तफाक वाली 8 हो गई और 2 हो गई जी इख्तलाफ वाली, है ना? हाँ जी। सही हो गया, मतलब उसने टोटल 10 चीजें बयान की हुई हैं ना? नहीं, जो मेरे ज़हन में है क्योंकि उसने तो बहुत सारी बयान की हुई है, ये तो नहीं आप कह सकते हाँ, कि यानी नहीं। इसका इसके अलावा जो 11 12 13 14 उसका आपको पता नहीं है। पता है मगर मेरे कहने के अब माइंड में नहीं है, क्योंकि मैं अभी कैसे कहते हैं अच्छा चलें, वो तो पहले शुरू कर लेते हैं इख्तलाफ से। 2 चीजें जो इख्तलाफ वाली हैं वो कौन सी हैं? ये जो देखें, जो भी भाई ने मुझे एक दो ऑडियो सुनाई है, ठीक है, तो उनसे तो मैं टोटली इख्तलाफ करूंगा। उसने मजाक में देखें, बोला तो मैं बोला भाई कि ने जो हाँ आपको वीडियो सुनाई है ना, तो वो मैं जी उस जी टाइम नहीं था, तो आप जरा 2 हाँ, मैं आपको अपनी बता आपने देता हूँ, 1 मिनट सुने मैं ना, आपको बताता हूँ। जी जी वो आपने अपना इख्तलाफ बताना है या भाई का बताना है? वो तो आपने अपना बताना है ना। नहीं, भाई ने मेरे सामने वीडियो पेश किया तो मैंने सुनते ही इस चीज की हिमायत तो नहीं की, मैं अच्छा तो नंबर उस 1 चीज से कौन भी सा इख्तलाफ इख्तलाफ है? करता हूँ। ये जो अभी उसने मजाक किया है, फिर उसने यहाँ कोई उसने इस चीज का जो भी उसने किया, मैं तो कहूंगा कि उसने मजाक किया जब तक वो खुद कौन नहीं सा कहता। मजाक मुझे कि बताएं। उसने कहा कि ये मेरे साथ जो है मेरे साथ ये खुलफाए राशिदीन की तरह हैं, ये सहाबा वाला उसने है। मतलब। अच्छा हाँ सहाबा वाला हाँ मजाक। हाँ अच्छा जी। जी, नंबर 2 कौन सा इख्तलाफ? नंबर 2 से मेरा एक ये इख्तलाफ था कि वो इस चीज का इनकारी है कि नबियों के अलावा कोई बंदा करामत कर नहीं सकता। वो कहता है कर नहीं एक सकता, मिनट, मैं कहता एक हूँ कि मिनट, नबियों हुई के नहीं है, अलावा कोई करामत कर नहीं सकता, वो कहता है। करामत नहीं, अच्छा नहीं कर सकता। अच्छा ये उसने किस वीडियो में कहा है? ये तो पहले मेरे लिए भी शायद पहली चीज है। नहीं तो वो ये कहता है ना कि हम इधर कैमरे लेके आते हैं, आप अपना बाबा ले आओ जी, करामत को दिखाओ, हम उसकी वीडियो नहीं बनाएंगे। ये वैसे कौन सी वीडियो, को ये एक वीडियो बताएं कि जिसने में उसने ये बात कही हो। सर वो इस तरह की बात तो वो आपको मैं उसकी एक वैसे ही सुना देता हूँ। ये जो कहता है कि बाबों ने दरिया रोके हैं, वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक बाबा लाऊंगा, उसको हम पानी पिलाएंगे और उसको बोलेंगे अपना पेशाब भी रोक ले, मतलब इस तरह की वो जो बातें करता है वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो तो मतलब ये कि वो करामत का इनकारी है, तो किरामत मैं का वो तो मोइज़े का भी वैसे इनकारी है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु मोजदे अलैहि का वसल्लम। नहीं मोजदे का इनकारी नहीं है। मैं आपको, मेरे पास अभी 2 फोन नहीं है, मैं इसी फोन से चलाऊंगा तो आपको आएगी नहीं, मेरे पास अच्छा फोन तो नहीं है। मोइज़े का इनकारी की वीडियो मैं सुना दूंगा आपको, वो कोई मसला नहीं। सर सर मैं आपको वो उसकी कहता है कि नबी मोजदे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से जो चश्मे जारी किए थे वो फिजिकली चश्मे नहीं थे, वो वैसे ही पानी के अंदर बरकत इतनी हो गई थी तो कि सब ने पी लिया था। तो सर मुझे, मैं फिर देखता जो मौजूदा होता है ना उसका, अब देखे ना जरा, जाहिर दरिया निकालना वो उस टाइम पे हम वो इस चीज से आप ये तो नहीं हासिल कर सकते कि वो मौजूदे का इनकारी है। वो इनकारी है ना, ये इनकारी है ना, ये मौजूदा नहीं है। सर, ये सर देखे ना, क्या आप नहीं समझते में उंगलियों से चश्मे जारी हुए थे फिजिकली? सर मुझे अभी इस हदीस का मुझे थोड़ा अल्फाज मेरे सामने नहीं है कि किस तरह से हदीस बयान हुई है, मगर मैंने सुना जरूर है ये हदीस। अब देखें जरा, अगर एक एक अगर अच्छा थोड़े से चले, पानी से इसके ऊपर मैं 50 बंदों जिरा की। करूंगा ना तो ये एक तवील गुफ्तगू हो जानी है, ना ही तुसा मनना है बिल्कुल ते ना ही मैं मनान दे विच सर पॉसिबल है, नबी से पॉसिबल ही नहीं होना कि भाई मैं तुम्हें मना सका। अच्छा जी, वो नहीं इत्तफाक वाली कौन सी इत्तेफाक है। चीजें हैं? हेलो, हाउ आर यू? जो इत्तफाक वाली चीजें। या एक मिनट बात करें सर। इत्तेफाक वाली ये चीजें हैं कि वो फिरका वारियत के खिलाफ है। एक मिनट जी, एक मिनट जी। फिरका वारियत के खिलाफ। नंबर 2। जी नंबर 2 पे आप डालें कि बिद्दत का इनकारी। बिद्दत का बिद्दत इनकारी। कैसे और जनाब जी, उसके अलावा
آپ تو سچی میں لگتا ہے لسٹ بھی بنانے بیٹھتے ہیں. آپ کو کوئی بستر ذہن میں بنے میں سے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے. نہیں 8 پوریاں کرنیاں 2 ہوئی نے. اچھا میں تو سر 8 مکمل کر دینا وا میرے کو طرف ٹائم دینا ہے. ہوں. کتنا ٹائم چاہیے میرے بھائی کو؟ اور دوسرا سر وہ شرک کے خلاف اس طرح سے بول شرک کے خلاف. شرک کے خلاف. اور جی کوئی تھوڑی سی ہم معاونت کر دیں آپ کی. ہیلو. وہ 8 چیزیں پوری میں کرا دوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو. جی سر آپ بھی پوری کرائیں. آپ کو بھی پتا ہوگا آپ بھی سارا نمبر 4 تو اس سے بھی آپ متفق ہوں گے کہ عورت کو 4 شوہر ملتے ہوں گے. سر اس میں یہ چیز گرانٹیڈ نہیں ہونی. یہ والی ویڈیو میں نے اس کی دیکھی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے نا. نہیں عورت کا یہ اب معاملہ یہ اللہ چیز نے پردے میں میں نے رکھا ایڈ ہوا ہے. کرنی ہے کہ نہیں کرنی اتفاق کے اندر؟ سر اتفاق کے اندر آپ اس چیز کو دیکھیں ذرا. یہ اس نے گرانٹیڈ نہیں بولا ہوا. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک اس ہے. کو آپ مطلب اس کو کوئی اختلاف فتویٰ آپ نہیں اس سے کہتا. اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں سر اس بندے نے اس چیز کا فتویٰ تو نہیں جاری کیا. اس نے کہا کہ ہو بھی سکتا ہے. نہیں اب اس کو نے کہا کہ ہو اتفاق سکتا کے ہے. اندر ڈالنا ہے کہ اختلاف کے اندر ڈالنا ہے؟ سر دیکھیں اگر تو آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ عورت کو جنت میں جا کے چار مرد ملیں گے, یہ بات آپ کہہ رہے ہیں, ہوں. تو یہ پھر آپ کو پہلے پھر مجھے بتانا پڑے گا اس نے کس ویڈیو میں یہ چیز بولی ہے. اگر اس نے بولی ہے تو یہ تو کہیں پہ بھی قرآن اور حدیث میں تو کہیں پہ اچھا بھی جی. بیان نہیں نہیں ہوا. مطلب یہ کہ عورت کا معاملہ ہے یہ پردے میں جدوں رکھی نا ہوئی ہے. جدوں آندے نے اس کو ایک آپ منٹ اپنے اختلاف میں ڈالیں. آپ اپنے آپ کے جو اختلاف ہیں آپ اس میں جی ڈال دیں میرے سر. بھائی 1 منٹ آپ اس سنیں کو پہلے تو. پھر پروو کرنا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہو بولا ہے. گیا ٹھیک ہو گیا میرے بھائی. اس کو ایسے کہتے ہیں کہ نہ ہی مرد تو نہ ہی عورت, اس کو کہتے ہیں ہیجڑا. ایسا ہی ہے نا؟ کس کو؟ یعنی جیڑا نہ ہی مرد ہوئے تو نہ ہی عورت, اس کو ہجڑا کہتے ہیں نا؟ جی ایسے تو پھر اس کو ہجڑے کے اندر ڈال دوں, نہ اتفاق تے نہ نہیں سر, اختلاف. نہیں سر اگر اس نے ایسے بولا تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز تو قرآن اور حدیث میں تو کہیں پہ بھی بیان ہی نہیں ہاں ہوتا وہی نا, اس اس کو کی پھر جو ہجڑا میں اوپر نہ سرخی باندھ لیتا ہوں, ہجڑا عقیدہ یعنی ہجڑا نہ عقیدہ. صحیح ہے نا؟ دیکھیں یہ اب عقیدوں کو آپ اس طرح سے اس نہیں طرح بے دیکھے الفاظ ہوتے اختلاف اور ہیں. وہ دیکھے آپ نے نیوٹرل, اختلاف تو اس دو. کے لیے آپ نیوٹرل ورڈ یوز کر سکتے ہیں سر. آپ اچھا کون سا کوئی ایک بتائیے گا؟ سر یہ اس کے اوپر 50-50 صحیح رہے گا. 50-50 سر 50-50 بھی نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ میں اچھا ایسا بولا نہیں ہے. میں صرف یہ نہیں کہہ کوئی رہا ایک ہوں اس کو کوئی نیم تو دینا پڑے گا نا اب پھر اس کو کوئی. اختلاف میں ڈال دیں. آپ اختلاف میں ڈال دیں. اچھا اختلاف میں پھر 3 ہو گئے جی. ہاں جی چلو ٹھیک ہو گیا جی. اس کو ڈال دینا ہے ہم نے اختلاف کے اندر. چلو جی. تے پھر چوتھے نمبر تے اتفاق والے میں ایک اورل سیکس ایڈ کر دوں؟ سر اورل سیکس کو آپ ایڈ اتفاق والے میں اتفاق تو میں پرسنلی نہیں, اس میں بھی میں اختلاف کروں گا. اچھا اختلاف اے ہوں 4 ہو گئے جی اختلاف والے. جی سر چلو اورل صحیح والے ہو. جو تساں یاد رکھے نا اختلاف والے کوئی وہ سیکس یاد کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اچھا جی اس کو بھی ڈال دیا ہم نے اتفاق والے. اچھا تو نہیں اتفاق والے میں نہیں, اس کو اختلاف والے میں ڈال سکتے ہیں. اختلاف نا رولا ایسے پھرتا نہ ہے کرنا آپ. حبیب صاحب. رولا پی جاتا ہے پیا. یہ بھول جانا نے محمد احمد نے بھول جانا ہے کہ میں اتفاق کرنا کیتا سی تے اختلاف کرنا کیتا سی. جدوں ہونی انہوں نے ویڈیو سامنے تے انہیں کہنا سی نہیں نہیں میں تیرے نال اتفاق کیتا سی. اللہ اکبر یار مزہ ہی آ گیا یار. اچھا 1 منٹ. چوتھا ہوں اتفاق والے دے وچ ایک چیز پان لگا جی میں کہ توحید کے بعد نمبر سیکس کا آتا ہے. کی چیز ہے توحید کے بعد نمبر سیکس کا ہے. کیا مطلب کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ مرزا جی نے فرمایا نا. کیا مطلب کہ کس کیٹیگری کیڑی وہ کیٹیگری فرماتے ہیں توحید کے بعد جو نمبر آتا ہے نا وہ سیکس کا ہے.
एक मिनट यार जरा देखो जरा, मैं उन चीज़ों बयान कर रहा हूँ या एक मिनट जी सुने तो मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम सुन लिया आपने कि तौहीद के बाद सेक्स डिसिप्लिन की बारी आती है। जी जी सर, बारी बुरी मुझे अच्छा, इसको आप किस में डालना है, इख्तलाफ में कि इत्तफाक में? इत्तेफाक में डालेंगे। इत्तफाक में डाल दो। एक मिनट भाई, ये चौथा नंबर मिल गया, शुक्र है अल्लाह पाक दा। तौहीद के बाद सैक्स, बड़ी गल है। अच्छा अच्छा, हुण पंजवें नंबर ते तुहानू अगर याद है तो ठीक, नहीं तो मैं गिनवा दियां। जी तुसी गिनवाओ। जी जी, वो ये है कि 10 साल की जब लड़की हो जाए ना तो उसको सेक्स सिखाना ही सिखाना है। इसको भी आप इत्तेफाक में सेक्स सिखाना ही सिखाना नहीं, थोड़ा बहुत इल्म देना चाहिए। हाँ, इलम देना, वही सिखाना इलम ही होता है ना भाई, सीखना सिखाना इलम। आगाही आगाही सर, आगाही ये होता है। अच्छा आप अच्छा, आगाही से मतलब चलो ठीक है, वो भी आगाही ठीक इसको थोड़ा सा इत्तेफाक में डालें, ठीक है? है। थोड़ा सारा, अच्छा ये थोड़ा जा इख्तलाफ च पा दें तो थोड़ा जा इधर ए नहीं समझ आई। हजूर मोहम्मद अहमद भाई एक मिनट, यकीन कर मैनू गोता लग चला सी यार, कसम खुदा दी भाई। भाई थोड़ा जा भाई, थोड़ा जा पाया। हाँ, चंगी गल है, चंगी बात। शेख एक मिनट में यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। अहमद साहब जी, आप रेमेडी बता रहे हैं 2 टेबल स्पून। सर जी रुकिए रेसिपी रुकिए जरा एक मिनट। अच्छा, एक होर छठी चीज सानू हुण ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਢਾਈ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਬਲਕਿ 3.5 ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, 4.5 ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਇਤਫਾਕ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 6.5 6.5 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 6.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੱਦ ਪਚੱਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ 2 ਪੈਡ ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਪਾਣਾ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ 'ਚ? ਇਹਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਨਹੀਂ 1.5 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ 1.5 ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1.5 ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। बहुत मजेदार पराठ हो रही है, यकीन करो बहुत मजे वाली। अहमद भाई तुहानू मजा आ गया, यकीन करो अहमद भाई तुहाडा मजा आ गया। एक मिनट भाई, 1.5 2 पैड लड़की के बैग में। अच्छा जी, है ये है 7वां नंबर। बस यार 8 पूरे करन दिओ, चुप करो, बोलिया जे ना कोई भी ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। अच्छा, 7वां नंबर है जनाब कि लड़के के बैग के अंदर रुमाल डालना। नहीं, ये ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇ ਚੌਥੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। अच्छा, वैसे किथे ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਚ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇ ਨਲੀ ਪੂੰਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਲੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਕੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੰਟਾ ਕੋ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਓਏ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। अच्छा, कोई गल नहीं। अच्छा, इनू हुण केड़ी खाते च पाना जे रुमाल वाला? लड़के के बैग में रुमाल। सर मैं ना रुमाल दे रुमाल मेरे कोल हो गए ना हो गए ना रहंदा मेरे। नहीं, वो फिर शलवार गिल्ली हो जाएगी, एवें ही लेवी लग जाएगी। रुमाल होएगा ना तो पूंजना आसान होएगा जी। चलो ठीक है। आओ आंदे ना वो भाई जी मिर्जा साहब ने फरमाया है। अच्छा, इनू हुण कित्थे पावां फिर दसो भी ते सही ना, इत्तफाक च के इख्तलाफ च?
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਜ ਲੋਕਾਂ ਖੱਪੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਾ ਕੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ ਫੜਿਆ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਛੜਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਲਵੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੋਣੀ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੈਲੋ ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਪ ਮਾਰੀਏ जी जी नहीं होएगी आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है ठीक है ना हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है खलो क्यों गया है बाओ इनू बाओ ये नहीं सर पैंदा हुन ये नहीं सर पैंदा ये खलो गई जेहड़ी शै है तो मेरी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ सर जी इन्हों ना तुसी इख्तलाफ विच बहुत थोड़ी सारी ਅੱਛਾ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਹ ਚੌਥਾ ਜੀ ਜੀ बेहयादी गल्लां करनियां नहीं पड़दियां ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ तुसी कढ रहे हो इख्तलाफ वालियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਹਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਰਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਪਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਜਰਾ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨੀ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲੇ ਚ ਭਾਈ 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁਣ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਤੇ 6ਵੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ 8 ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮਕੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆਹੋ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟੌਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪਾਣਾ ਜੇ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਜ਼ੂਮ ਆਣਾ ਬਲਕਿ ਇਹ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਆਣਾ ਵਾਲੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀ ਕੋਣੀ ਪਈ ਸ਼ੈ ਇਤਫਾਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 8 ਇਤਫਾਕ ਨੇ ਤੇ 2 ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ ਤੇ 2 ਇਖਤਲਾਫ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਗਨਵਾ ਛੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ 6 ਇਖਤਲਾਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਗਲੇ 3 ਮੈਂ ਲਿਖੋਏ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ
ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਤੋਂ ਮਾਫ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਫਾਈਦਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ? ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਏ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਵੀਂ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਈ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਸਹੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਰਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੀ 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 ਠਹਿਰੀ। ਅੱਛਾ 7ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਇਬ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਇਬ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਚਮਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੀ, ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੀ ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲੀ, ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲੀ ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵੇ 50-50, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਹਿਜੜਾ ਅਕੀਦਾ 50-50 ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਹਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਧੀ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹਿਜੜੇ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਕੀਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਏ ਵਜ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹਿਜੜਾ ਅਕੀਦਾ 3 ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧੀ ਪਈ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨਜਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਦੇ ਚ ਪਾਣਾ ਜੀ? ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਲੱਭੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 7ਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ 7ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਟੋਟਲ, ਇਹ ਤੇ 7 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ 2 ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। जी जी 2 मिनट वेट करो भाई, वेट करो, इंतजार करो। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ ਸੀ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰੀ 1 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਸ ਗਏ ਲੈ। ਉਹ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਆ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੋਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂ? ਐ 7ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਏ ਓਏ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦੋ, ਤਬਾਹ ਕਰ। ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓਗੇ और बड़े अच्छे यार नहीं अहमद साहब 2 मिनटाਂ तक ना ना आए तो मैं भी दौड़ जाना जे भाई, फिर ना क्या जे। नहीं ना हजूर, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। हाँ नहीं मैं भी दौड़न लगा जे अहमद साहब ना आए थे। 2 ਮਿੰਟ मैं बैठा जे अहमद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਭੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਲਮ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2 ਪੈਡ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਬੈਗ 'ਚ, ਇਹ 1.5 ਜੇ ਭਾਈ 1.5 ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਣਾ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਲ ਕੇ 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ, ਹਾਂ ਆਹੋ ਰੁਮਾਲ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ, ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਰੁਮਾਲ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਫਿਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁਤੱਲਲ ਜਵਾਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਆਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ। ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਬਕ। नहीं आ गए अहमद साहब, नीचे आ गए हैं। आ गए जी, माशाल्लाह अहमद साहब बहुत मेहरबानी जनाब। जी जी अहमद साहब ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਦਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ नहीं वो तो तुसी पहले लहा छड़े ना बिद्दत का इनकारी है। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਣਾ ਜੇ। ਸਰ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ। अकीदा तौहीद को जैसे वो बयान करता। अच्छा जी सर अकीदा तौहीद को जैसे वो बयान करता है। अच्छा 8वें नंबर पे ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਮੈਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੋਲਮੋਲ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਤਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਓਏ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਲਹਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੋਖਾ ਦੱਸੇ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, 8ਵਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ? 8ਵਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਦਰਜਾਤ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਝ ਲਿਖਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ। अच्छा उर्दू में लिखवाएं मुख्तसर। सर आप उर्दू में लिख लें। अहले बैत के अहले बैत के दर्जात करके जरा थोड़ा ऊंची बोलो, जरा ऊंची बोलो मतलब थोड़े। एक मिनट भाई एक मिनट। अहले बैत के दर्जात ओ की मतलब समझ नहीं ना आई। ये तो सारे दर्जात मनते ने, सब सुन्नी शिया भाभी देवबंदी सब मनते ने। बहुत अच्छी गल है। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਜਿਕਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਦਰਜਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਏ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਖਾਰਜੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ, ਇਹ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਓਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਾਣਾ ਜੀ? ਚਿਕਨ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪਾਵਾਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ। ਅੱਛਾ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਖਾਰਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਖਾਰਜੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਇਤਫਾਕ ਦੇ। ਇਹ 8 ਸਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ 3 ਉਤਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਪਾਣਾ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਚ? ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਪਾਸ ਉਹ ਪਾ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪਾ ਛੜਿਆ। ਆਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਚ ਪਾਣਾ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਚ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਖਾਰਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਏ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਰ
ਸਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ नहीं नहीं इंज नहीं ए देखो ए सुन लो पहले वीडियो सुन लिहाजा यहाँ पर मैं अहले तशय्युअ भाइयों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जो मौला अली के मानने वाले हैं वो बात समझ लें। मौला अली ने खवारिज जिन्होंने मौला अली को काफिर कहा, मौला अली ने उनके जनाजे खुद पढ़ाए और कहा ये मेरे भाई थे, भगोड़े हो गए, मैं इनको मुसलमान ही समझता हूँ। अपने हाथों से दफन किया, उनकी औरतों को लौंडियां नहीं बनाया। और जब जनाजा पढ़ाया जाता है उसमें दुआए मगफिरत होती है, अल्लाह मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना। जी ठीक हो गया ना। मौला अली ने खारजियों के जनाजे पढ़ाए, उनके लिए दुआए मगफिरत की और उनको कहा ये मेरे भाई हैं। इसको किधर डालना है? ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ। अच्छा एक उन 7वीं 8वीं बल्कि 8वीं लाइन न्यूट्रल दिया गई है। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਨਿਊਟਰਲ नहीं ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹਿਜੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ? ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿਜੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੈਲੋ ਸਰ ਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਕਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਕਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਚ ਸਮਝਾਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਚ ਗੱਡੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੇਅਰ ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ अच्छा गूंगा शैतान। सही गूंगा शैतान दी कैटेगरी च पा दे। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਝ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਚ? ਉਹ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੀਏ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਦ ਅਗਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਹੈ? ਅਸਦ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਛੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋ ਬਾਈ ਡਿਬੇਟ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਅਸਦ ਨੂੰ ਕਰਵਾਓ ਐਡ। ਅਸਦ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੰਨੀ ਆ ਬਰੇਲਵੀ ਜੋ ਬਾਬੀ ਪੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, इधर सलाम फेरिया नागरा हो गया, उधर फेरिया ते हाफिज हो गए। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਓਹੋ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੁਬਸ਼ਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯਾਦ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇਣ ਲਾਈਵ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਤਫਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਤੋਂ? ਸਰ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਖਤਲਾਫ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਇਤਫਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਅਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਰੁਮਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪੈਡ ਬੂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਪੈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਤਫਾਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ।
सर की ख्याल है? इस तरह है कि मेरी अर्ज सुन लो ना पहले अमन भाई वीडियो की मैं अर्ज सुन सुना लो। दिया, इधर वीडियो सुना दिया, फिर मैं जाना है ताकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। जी 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 मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। जी सर मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके उज़ार मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची पूरे पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक जी प्लान भाई बनाया हुआ है, अल्लाह करे वो कभी दिन है। मैंने एक इख्तिलाफ शुरू नहीं होया ਤੁਹਾਡਾ? ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ। ਮਾਜ਼ਰਤ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ? ਖੁਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅਮਾਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ ਵਾ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਇਹ ਬਰਾੜ ਚੱਕ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਬਰਾੜ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਚੱਕ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। यार इन्ने बंदे बैठे हो तो कम से कम डबल टैप तो करो। एडी मजेदार बराड हो रही है ना, कसम नाल इन्नी अच्छी बराड हो रही है, जबरदस्त। डबल टैप तो करो यार तो सही। जी जी अहमद साहब, वीडियो भी आपने सुन ली है, तो आपने देखी भी होगी, तो आपने इसके ऊपर इत्तेफाक किया है। तो जिस चीज़ के ऊपर आपने इत्तेफाक किया है वो तो ज़रा बताएं हमें अपने। सर यही कि उसने कहा है कि यही मौलवी साहब ने मेरे से, कारी साहब ने, बशीर भाई ने। माशाल्लाह अहमद साहब एक मिनट, मैं ज़ियारत तो कर लूँ यार आपकी, मैं पहले ज़ियारत तो कर लूँ। जी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी तो जी जनाब। मैं तो इससे उसने जो बयान किया है वीडियो में, मैं तो इसके पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। आप बताएं कि कहाँ पे गलत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कहीं पे गलत नहीं हो सकता, कहीं पे अगर होऊंगा तो आपने मुझे कन्विंस करना, मेरी भी रहनुमाई होगी। नहीं नहीं वो तो आपकी बात ठीक है। मैं जब मुझे होगा ना इश्काल होगा, जिसके ऊपर मुझे डाउट होगा, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप इत्तेफाक कर रहे हैं, उससे एग्री कर रहे हैं, वो मुझे बात ये इस बात पे मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। यार किस चीज़ के ऊपर? खामोश भाई, कि ये सेक्स खामोश भाई, खामोश। लड़कियों के बैग में खामोश भाई, खामोश। अहमद साहब एक मिनट ज़रा, अहमद साहब अभी करते हैं आपसे बात, थोड़ा सा म्यूट रखिए ज़रा। रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। मुहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के होनहार स्टूडेंट से अभी मुनाजरा होगा, तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर तक डिबेट शुरू करते हैं। उतनी देर ये टिकटॉक के ऊपर एक गुफ्तगू हो रही है, उसको भी साथ साथ सुनते हैं। जी असद भाई, आप इनसे गुफ्तगू जारी रखें।
जी शेख जी, मोहम्मद अहमद साहब जी भाईजान। कर लें कैमरा ऑन, कोई मसला नहीं है। नहीं वो मेरा ना सर, मैं फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो मेरा फोन पे नहीं कुछ लग रहा। जी जी। अच्छा, तो अभी आपने जो जिस बात से आप एग्री है ना, वो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, वो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। नहीं मुझे तो आप पैड वाली बात बताएंगे से ना कि आप आपका एग्री क्या करते इख्तिलाफ है, हैं। तो मुझे पता चलेगा काशिफ आप। काशिफ काशिफ जी उस्ताद जी। इमादुल इस्लाम ਨੂੰ जरा मैसेज कर या फोन कर, उनका लिंक तेनू आ गई ते जल्दी आ। जी अच्छा। जी अहमद साहब। जी भाई देखें मैं तो एग्री कर रहा देखिए मुझे आप कहाँ पे यार, आप नहीं बता agree नहीं ना कर रहे, रहे आप कि मुझे आप एग्री बताएंगे। कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो जो कह रहा है कि जो पैड देने चाहिए, ये जो वो कह रहा है कि सेक्स की तालीम देनी चाहिए 10 साल की उम्र में, कुछ तो बताए ना, 3-4 उसमें पॉइंट है ना। सर मैं कहीं तो आप सारी बात के ऊपर एग्री करते हैं? सारी बात पे एग्री कर रहा हूँ। आप हाँ कौन सी ठीक डिसाइड हो कर गया, रहे हैं? माशाल्लाह। जी अहमद साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं, तो सेक्स की थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेनेशन दे सकें, किसको कहते हैं? सर सेक्स जो है ना, सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस आता है। एक तो जेंडर बेस्ड डिफरेंस है आपका। या नाउ बैड सो तो सर सबसे पहले तो एक जेंडर के अंदर डिफरेंस है, जो कि पता होना चाहिए इंसान को कि एक मर्द क्या है, औरत क्या है, ये किस तरह से मुख्तलिफ है, और कुछ नहीं। तो अगर ये मुख्तलिफ नहीं है आपस में, अच्छा। इसका इल्म हो या ना हो बच्चे को, मगर यह यार क्या नाम है आपका? इनका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। अहमद साहब आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। सर कोई नहीं, इतने ही ठीक हाँ। यूट्यूब से आ जाओ यार, आमने सामने जरा थोड़ी जी गुफ्तगू हो जाएगी। सर ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਯਾਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਲੋ ਸ਼ਾਲੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਜੀ ਅਸਦ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। तो मेरे भाई मैं तो टोटल। अच्छा चलें अहमद भाई, मैं इसको ना थोड़ा सा मैं शार्ट करता हूँ। देखें अभी हमारे जो मुआशरे में आमतौर पर जो सेक्स का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है, ये जो इंटीमेट होता है, ठीक है, तो उसके लिए मोस्टली तो ये अब्दुल मन्नान साहब आए हैं जनाब, डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो मोहतरम कॉल कट गए, दोबारा कॉल करिए और माइक और कैमरा अलाउ करें, फिर आप कॉल कर सकते हैं। जी प्लीज़। जी अहमद साहब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वो जो सेक्स है वो तो दूसरी तरफ लेके जाया जाता है मोस्टली, ठीक है, हमारे माशरे में जो चीज़ समझी जाती है। अभी मिर्ज़ा साहब उसमें टैग उन्होंने लगा दिया कि सेक्स एजुकेशन, लेकिन वो आगे वो बच्चों को बता रहे हैं कि जनाब ये जो पीरियड्स आ रहे हैं उनको पैड देने चाहिए, उसके बाद जनाब ये बच्चों के जो है वो रुमाल देने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्या डिफरेंट चीज़ नहीं है? मिर्जा साहब कह कुछ रहे हैं और उन्होंने टैग जो है वो कुछ और दे रहे हैं। देखें जरा, सेक्स एजुकेशन के अंदर आता है ना कि जी कैसर अब्बास साहब कौन है जनाब? यार एक मिनट में जरा, कैसर अब्बास साहब कौन है? मैं ये कारी साहब को अपनी तरफ से म्यूट नहीं कर सकता। कैसर अब्बास साहब कौन है जनाब? अगर अहमद साहब आप यूट्यूब पर चले जाएंगे ना, जी यूसुफ जान साहब कौन है आप? या फिर आप ऐसा करिएगा नेक्स्ट टाइम आप लगाइएगा चक्कर, क्योंकि अभी फोकस हमारा यूट्यूब की तरफ ही है। तो इतनी देर लिस्ट बनाने का क्या फायदा अगर इस तरह से यार देखें बात सुने, आप YouTube को, मैं आपको बुला रहा हूँ, YouTube पे आप आ नहीं रहे। अभी आपने मुझे लिस्ट बना के दी है, सुने जरा ना। आपने कहा जी मैं मिर्जा जूनियर जेल में की चंद चीजों से इख्तलाफ करता हूँ, चंद चीजों से इत्तेफाक करता हूँ, ऐसे ही है? हेलो सुन रहा हूँ आपको, वो बोलो ना हूँ ना। यूट्यूब मुझे बताओ ना जरा, मैं आपको सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब खत्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर अभी हम लाइव हैं। खत्म नबूवत टाइम्स। यार ये कैसर अब्बास साहब कोई बोलेंगे? आप माइक ओपन करें मोहतरम। कैसर अब्बास साहब का इरादा ही नहीं है, कोई वैसे कॉल डाल के बैठ गए हैं। यूसुफ जान साहब बोलने हैं आपने कि वैसे
सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मैं तो सऊदी में रहता हूँ, बस आपकी ये ब्लॉग सुनता हूँ, कादियानों से मुनाजिरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मैं सुनता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। तो कोई बात वगैरह नहीं करनी? मैं क्या बताऊँ मुफ्ती साहब, बस आप बताते हैं उसको जलील करते हैं मुझे, बस वो सब कुछ मैं सीखता हूँ। भाईजान ये अच्छा आपके चले यूट्यूब पर लाइव चले कैसे हो यूसुफ रहे हैं, भाई मुझे आप प्लीज ना फिर समझा माइक दीजिए। म्यूट करके बैठे हैं, ठीक है? इस्लामुल्लाह ठीक भाई, है, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामुल्लाह भाई भी नेट जी। राना साहब, राना यासीन साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर मेरे माइक का मसला बात बात हो जाता ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। नो किसी की भी नहीं समझ आ रही। राना साहब आप बोल सकते हैं। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਬਸ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। जज़ाकल्लाह जी। अभी कुछ देर तक इमादुल इस्लाम साहब आ रहे हैं और उनके साथ फिर डिबेट होती है। कहते हैं सिर्फ 5 मिनट का बोला है इन्होंने, देखते हैं कैसे आते हैं, कब आते हैं। और इधर टिकटॉक के ऊपर एक बैठे हुए इंजीनियर साहब के होनहार स्टूडेंट साहब, उनसे गुफ्तगू जारी है। वो कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। लिस्ट उन्होंने तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे आपको किसी तरीके से ज्वाइन कर लूँ, मगर वहाँ पे हो नहीं पा रहा। तो हो नहीं पा रहा, क्यों जी? पता नहीं मुझे, मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं, लाइव वीडियो मिल गई है आपको? हाँ जी मिल गई है। मिल गई है। वीडियो के नीचे ये कमेंट अभी मैं करने लगा हूँ कि कॉल करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। वो जाएं, वीडियो देखें जरा, जल्दी जाएं। अभी कमेंट किया है मैंने जी, मैंने देखा है। यहाँ टिकटॉक छोड़नी पड़ेगी ना आपको, उधर कॉल करने के लिए टिकटॉक छोड़ के उधर जाना पड़ेगा। आओ यार, तबलीग करो यार। कोई इंजीनियर दे स्टूडेंट, कोई इंजीनियर वड्डे इंजीनियर साहब दे स्टूडेंट, कोई छोटे इंजीनियर साहब दे स्टूडेंट, आओ यार कोई तबलीग करो सानू। ਅਸੀਂ रोजाना बहने ਆ, कोई तबलीग ही नहीं करता सानू हैं। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਆਸੇ ਤਬਲੀਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ? ਕਰੋ ਨਾ ਤਬਲੀਗ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ दसो साबित। प्रॉब्लम आ रहा है मेरी तरफ से। प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा। चले जी गुफ्तगू शुरू करते हैं। चले जनाब शुरू करते हैं। 10 साल की लड़की को सेक्स सिखाएं, ये कौन सी कुरान की आयत है या हदीस है? एक कुरान की आयत, एक हदीस दे दियो, जल्दी करो। सर तो आवाज कटन लग गई है, जरा रिपीट करें। आवाज कटनी है, हुन बड़ा कुछ होना है सर। दुनिया दा तकाजा है, उन्हें हदीस जी जी दुनिया दा तकाजा याद है। वो क्या है कुरान दी सुतुजा ने क्या मैं इतना इत्तेफाक करना वा? इत्तेफाक वाली चीजों के अंदर आपने ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया? जी सर। तो मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ, इसने बात बिल्कुल ठीक की है। बाकी सबको आवाज मुफ्ती साहब की क्लियर आ रही है या मुझे ही क्लियर आ रही है? बस जी क्लियर आ रही है, आपको ही शायद पता नहीं भी मसला शुरू हो गया है। आवाज सारी क्लियर है भाई, आवाज सारी क्लियर है। नहीं मसला शुरू नहीं होने देना मैंने। तो काशिफ इमादुल इस्लाम ने दोबारा किया कहा। हाँ जी अब सही आ रहे हैं उस्ताद जी, आ रहे हैं। सर शाह साहब आओ भाई आओ, मरज़इयो नेड़े लगो है, मरज़इयो ते कादियानियो, छोटे मिर्दे वाले वड्डे मिर्दे वाले, आओ नेड़े लगो, तबलीग करो भाई सानू। और डबल टैप करो, शेयर करो, डबल टैप करो, जल्दी करो, रोला पा दियो। अभी ये हमारी ब्राड जो है ये 4 सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जारी है। यूट्यूब के चैनल खत्म नबूत टाइम्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। इमादुल इस्लाम साहब तशरीफ ले आए। माइक सारे म्यूट कर लो भाई, माइक म्यूट कर लो जी। हुण तुहाडी गेम ओवर हो गई है, माइक म्यूट करो, इन्हां दा माइक म्यूट करो जी। जी इमादुल इस्लाम साहब, वालेकुम सलाम जी। शाह साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। जी डिबेट के लिए तैयार है जनाब? जी बिल्कुल रेडी मैडी। जज़ाकल्लाह खैरा। जी क्या मौजू क्या है? मौजू क्या है, किस मौजू पे बात करनी है?
جی جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے موقع دیا۔ موضوع جناب آپ کے جو بزرگوں کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں جو لکھ کر گئے ہیں، ان کی باتوں پر بیان ہے، مناظرہ ہے، تو آپ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ جی ایسا ہے کہ موضوع پہلے مجھے لکھوا دیں۔ موضوع ہے کہ بزرگوں کے واقعات۔ جی 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 صحیح ہو گیا۔ بزرگوں کے واقعات اور معذرت کے ساتھ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اچھا جی، بزرگوں کے واقعات جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یہ موضوع ہے۔ جی بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ موضوع اماد الاسلام صاحب نے دیا ہے، سب نے سن لیا ہے جی، بزرگوں کے واقعات جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو 2 منٹ بات صحیح رہے گی، 1 منٹ؟ جی جی 2 منٹ صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں میں گفتگو پھر شروع کرنے لگا ہوں۔ ابھی میرا ٹائم شروع ہو گیا، تو 12 منٹ پر گفتگو شروع ہوئی ہے۔ مائک میوٹ، خود ہی مائک میوٹ کر دینا، بیچ میں بولنا نہیں ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں کرامت اور معجزات سے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنا بتا دیں کہ بھائی آپ لوگ معجزات یا کرامات کے انکاری ہیں کہ نہیں، یا مطلب منکر ہیں، اقرار کرنے والے ہیں یا منکر ہیں؟ تو یہ آپ تھوڑی سی بتائیے گا۔ کاپی پینسل لے لیں اماد الاسلام صاحب، یہ لکھتے جائیں۔ تو ابھی تو 2 منٹ میں گفتگو کر رہا ہوں، تو جو چیزیں میں پھر پوچھوں گا پھر اپنے وقت میں ان کا جواب بھی دینا ہے کہ کرامت کے آپ لوگ مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اور کرامت کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے کیا بنائی ہوئی ہے، کرامت کی ڈیفینیشن، کرامت کی تعریف۔ ٹھیک ہے، میں یہ اپنے پاس بھی لکھ لیتا ہوں، کرامت کی تعریف۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے، اور پہلا یہ کہ کرامت کو آپ مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں میں نے لکھ لی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے وقت میں آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ اگر تو آپ کرامت کے ہیں ہی منکر کہ مانتے ہی نہیں ٹوٹلی، تو ٹھیک ہے بھائی، پھر تو آپ کے نزدیک جتنی بھی کرامات ہیں وہ تو آپ مانیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر تو آپ کرامت کے اقراری ہیں تو ان کی پھر ڈیفینیشن بھی بتائیں گے، کرامت کہتے کس کو ہیں، آپ لوگوں کس چیز کا نام کرامت رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے ذہن سے نہیں آپ نے کچھ بتانا، قرآن اور حدیث سے ہی بتانا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے قرآن حدیث والا۔ تو جو بات کریں گے کوشش کریے گا قرآن حدیث سے ہی کریے گا، کیونکہ آپ نے جو موضوع دیا اس کے اندر بھی قرآن آپ نے ڈال دیے، قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ میرا ٹائم ختم ہوا، بولیں۔ جی جزاک اللہ، آپ نے ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا تھا، 2 منٹ بات کرنی ہے۔ یہ اوپر کاؤنٹر لگا ہوا ہے، کاؤنٹر لگا ہوا ہے، میں زیادتی نہیں کر رہا، کاؤنٹر لگا ہوا ہے۔ اچھا میں اب بات کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے بھائی کرامات کو میں مانتا ہوں، آپ کہہ رہے ہو آپ لوگ آپ کسی اور کو انکلوڈ نہ کریں، جنہیں مرزا علی کو میں ادھر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں اس کو نہ لے کے آئے بیچ میں، کیونکہ میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ میں دیوبندی اہل حدیث بریلوی شیعہ بھی نہیں ہوں، میں قرآن و سنت کا منہج پر ہوں اللہ کے فضل سے۔ میں نے گزارش کرنی ہے کہ آپ نے کہا جی کرامات کو میں مانتا ہوں جو واقعی قرآن و صحیح حدیث والی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا معجزات انبیاء سے صادر ہوتے ہیں، کرامات اولیاء اللہ سے، میں مانتا ہوں مگر صحیح حدیث میں ہو۔ تو دوسری بات ہے کہ آپ مناظرہ شروع کریں، ڈیبیٹ شروع کریں، تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو، میری بھی اصلاح ہو، عوام الناس کی بھی اصلاح ہو۔ غلط بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ نے ادھر گالی دینی ہے، نہ ہی آپ نے ماشاءاللہ پچھلی ڈیبیٹ کی بہت اچھی آپ نے کی ہے، اور آپ کے جو ہیں مرید ہیں، مریض ہیں، چہرے چپاٹے، ان کو لے کر نہ آئیے گا بیچ میں۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے جو علمی ڈسکشن ہے، کیا پتا آپ کی علمی ڈسکشن سے ہم توبہ کر لیں یا آپ توبہ کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، آپ بات شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ جی آپ نے ٹائم پہلے خود ہی بند کیا، اب یہ ٹھیک ہو گیا، 18 منٹ تک میرا ٹائم رہے گا، صحیح ہے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ سے 2 سوال کیے ہیں کہ کرامت کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس کے بارے میں آپ نے
कोई कुरान से दलील नहीं दी, वैसे ही आपने कहा जी करामत को मैं मानता हूँ, ये कोई बात नहीं। अगली बात मैंने कहा करामत की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करामत एंड मोइजा, वो कोई आपने कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगली बात जो आपने कर दी है ये बड़ी खतरनाक है जी, मैं इंजीनियर को मनदा ही नहीं जे है। तो भाई जब आप इंजीनियर को नहीं मानते, हम तो इंजीनियर के मुकल्लिदीन या वड्डे इंजीनियर साहब मिर्जा गुलाम कादियानी के मुकल्लिदीन से बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ, और तो किसी से हमारा कोई लेना देने नहीं, ना सुन्नियों से, ना वशियों से, ना भाभियों से, ना देवबंदियों से, किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो आप जब किसी कैटेगरी में शामिल ही नहीं अपने आप को कर रहे, अब मैं आपको झूठा करूंगा तो आप किसी को कह ही रहे हैं मैं किसी को मानता ही नहीं, तो वो कौन झूठा होगा? आपकी जमात कोई है ही नहीं जब, तो वो आपकी जमात तो झूठी ना हुई। फिर जब आप अपने आप को किसी से जोड़ ही नहीं रहे, अलग आपने दुकान आप खोल ली है कि ना ही मैं इधर जे ना ही मैं इधर जे, मैं बस एक अलग दुकान खोली है। ये अलग दुकान वालों से तो हमारा मुनाजरा है ही कोई नहीं, ठीक है? अपना तल्लक जोड़े अपना कि मैं देवबंदी हूं, मैं वाबी हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं कादियानी हूं, मैं मरदई हूं, डिबेट करेंगे अपने आप से। मैं साई हूं, मैं यहूदी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुल्हिद हूं, डिबेट करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे ना मैं देवबंदी हूं, सुन्नी हूं, शिया हूं, वाबी हूं, फिर नहीं। और उस बंदे से भी नहीं कि जो ये कहे कि मेरा किसी नाल भी कोई तल्लक नहीं, ठीक है ना? क्योंकि लितर जब मारेंगे हम आपको तो वो डायरेक्ट जाने चाहिए आपकी जमात की तरफ, आपके लीडर को लितर पड़ने चाहिए। वो आप क्या हैं? हम आपको क्या समझते हैं? आप क्या चीज हैं? या तो आपकी कोई जमात होती ना, आपकी कोई आप लीडर होते, कोई पीछे आपकी पूरी जमात होती, क्या आपको हम जलील करते तो आपके सारे बंदों को लितर पड़ते और वो जलील होते? आप क्या चीज हैं? हम आपको क्या समझते हैं? मेरा टाइम खत्म हुआ, शुरू करें। जी जज़ाकल्लाह। बात ये कि लितर जो आपको पढ़ रहे हैं ना इल्मी लिहाज से, उसका जवाब देना है। दूसरी बात ये कि आपने कहा जी कि हमारा पूरी अपनी जमात शो करो। अल्लाह के बंदो, मैं आपको कह रहा हूँ मैं सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान सुन्नी हूँ, मेरा सबसे इल्मी इख्तलाफ है। आप हमें फिरकों के साथ ना जोड़ो मुबशर शाह भाई, आप हमें कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ो, कुरान और सही हदीस के साथ जोड़ो। ये आपने खयानत की है जी, उनके साथ जोड़े लितर। भाई अल्लाह से डरो आप। बाकी कादियानी मुल्हिद तो उन पर अल्लाह की लानत है, उनको दफा करो। आप एक मुसलमान, सच्चे मुसलमान के साथ आपका वास्ता पड़ा है, तो आप दिफा करो अपने बुजुर्गों की, जो अल्लाह माफ करे गुमराहियां, उस पर आपने रेफरेंसेस के साथ बात करनी है। ये क्या बात हुई कि उधर जोड़े तो ये है, वो है, ये है, ये गलत बात है। आप इल्मी बात करें, कुरान सही हदीस के दायरे में रहकर, और आपके बुजुर्गों ने जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बातें की उस पर बात करें। आज सबके सामने लाइव बात करें, और आप जनाब भागने वाला काम ना करें। ये तो राय फरार आप इख्तियार करें, अभी से आप डिबेट करें, असूल में रहकर डिबेट करें, और आप बताएं आगे बुजुर्गों ने जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बातें की हैं उसका क्या जवाब है। सही हदीस कुरान कुछ और कह रहा है, आपके बुजुर्ग कुछ और कह रहे हैं, ठीक है? बाबों की बातें और हैं, किताबों की बातें और हैं, ठीक है जनाब? इसका आप जवाब दें। ये इंजीनियर मिर्जा की बात कितना ले जाइएगा, मेरा ये अपना स्टांस है, मौकफ है। आप जनाब डिबेट शुरू करें, मैं आपको अब टाइम देता हूं, आप बात पहले कर लें, फिर आप डिबेट शुरू करते हैं एक मौजू पर अल्लाह ताला का नाम लेकर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आप बात करें। अच्छा ठीक हो गया। अब मैंने 22 मिनट तक बात करनी है। अच्छा, गुजारा ये है कि जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ उसका तो कोई जवाब दिया नहीं आपने, ना ही आपने कुरान करामत का इकरार या इनकार कुरान से साबित नहीं किया। करामत की डेफिनेशन आपने कुरान से साबित की नहीं। आप कह रहे हैं मैं इंजीनियर को मानता ही नहीं। आप कहते हैं मैं सुन्नी हूं। सुन्नी तो सारे कादियानी भी कहते हैं सुन्नी हम। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं, अच्छा आप इनकार करें, ये लो हवाला पहले, अगलियां गल्लां बाद चो, ठीक है? हवाला तो असी जेब च रखने होंगे ना, तुहानू साडी आदत दा पता नहीं शायद। हेलो हवाला पहले ले लो।
ये ले जी, मिर्जा कादियानी कहता है मेरा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुवाफिक है। रूहानी खज़ैन जिल्द 4 सफ़ा 404, जिल्द 4 सफ़ा 404। करो इनकार, आप सिर ऐसे ला रहे हैं, आपको पता ही कक नहीं है। हुन इंज कर लो उड़ा इंज कर लो, ठीक हो गया। अच्छा 22 मिनट मैं पूरे करने ने अपने। पहले आप एनएज कर रहे थे, अब एनएज कर रहे हैं, ये क्या होता है? वो तो अहले सुन्नत, तो कादियानी भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। तो मेरे भाई 22 मिनट 2 मिनट बात करनी है। टाइम काउंटर लगा, मैं टाइम दोबारा शुरू करने लगा ना भाई ना, बिच बोलोगे टाइम दोबारा शुरू हो जाना है। इंज नहीं भाई, इंज नहीं, मेरा टाइम दोबारा यही असूल आपके लिए भी मेरे लिए भी, ऐसे नहीं। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात। मैं टाइम दोबारा शुरू करने लगा, हूं टाइम दोबारा मेरा शुरू होने लगा। हूं 24 मिनट मैं 2 मिनट ना भाई ना, इंज नहीं भाई ना। टाइम जिदू विच बोलोगे टाइम दे विच मैं टाइम दोबारा शुरू करूंगा भाई। यही कानून आपके लिए भी है, मेरे लिए भी भाई, आपके लिए भी यही कानून, मेरे लिए भी ये, ऐसे नहीं, गलत बात। तो मेरे भाई मैं कह मैं 24 मिनट पर अब बात खत्म करूंगा। बीच में बोलेंगे मैं फिर दोबारा काउंटर शुरू कर दूंगा, काउंटर दोबारा शुरू। ओहो, इधर 10 मिनट हुए हैं पाकिस्तान में। मेहरबानी, मुझे 2 मिनट बात करने, मुझे बात करने दे, ठीक है। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप कह रहे हैं जी मैं अहले सुन्नत हूँ, वो सारे ही अहले सुन्नत ही बन रहे हैं। वो बहाई जो हैं, बहाउल्लाह ईरानी वाले, वो भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। हाँ जी, वो सब आज सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी सब अपने आप को अहले सुन्नत ही कह रहे हैं। वो जो है क्या मुनकरे हदीस हैं, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत ही कहते हैं। फिर आप थोड़े जिन्ना सारा ला रहे हैं। मैं आपको दलील दे रहा हूँ, दलील नोट करो। रूहानी खज़ैन जिल्द 4 सफ़ा 404, हवाला गलत हो, जिहड़ी चोर दी सजा हो साडी सजा। कादियानी भी कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, वो भी सुन्नी अपने आप को कहते हैं। और आप लोग भी अपने आप को अहले सुन्नत वाले जमात कहते हैं, तो वो भी अपने आप को अहले सुन्नत वाले जमात ही कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये सुन्नी का लफ्ज तो पकड़ा हुआ है हर एक ने, समझ आई कि नहीं? तो बीच में नहीं बोलना, बीच में बोलेंगे ना तो वो टाइम काउंटर दोबारा शुरू हो जाएगा। रही बात ये कि राह फरार, असूलों पे रह के बात करें। राह फरार तो आप इख्तियार कर रहे हैं, आप अपना कुछ बता ही नहीं रहे। अलग दुकान खोल ली आपने कोई जेलम के अंदर। एक दुकान घट सी जी इंजीनियर ने खोली सी, उन्हें जेलम च एक नवी दुकान खुल गई है। हाँ जी, ना इधर ते ना इधर, ना कुड़ी ते ना मुंडा, उन्होंने हिजड़ा कहते थे। हाँ जी, ओ भाई अपना तल्लक तो कहीं जोड़ो। हाँ जी, कौन हो आप, किसको मानते हो, किसके मुकल्लिद हो? नहीं, मैं नहीं किसी को मनता। वो अपनी नवी दुकान, ना मैं भाभी, ना मैं भाभी, मैं वाला मजा तो नहीं है, समझ आई कि नहीं? ए मेरे 24 मिनट शुरू करो जी, बात करो जनाब। अच्छा जी जनाब, बात ये है कि आपने कहा कि कादियानियों पर अल्लाह की लानत हो, आप वो हनफी है कादियानी। ये कहानी ना कराएं शाह साहब, बात मौजू पर आए कि उलमा का नजरिया। एक मर्तबा सैयद जुनैद बगदादी साहब दरिया दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए इस पर जमीन की मिसर चलने लगे। एक शख्स ने अर्ज की कि मैं किस तरह आऊं? कहने लगे या जुनैद कहता चला। उसने यही कहा और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। जब बीच दरिया में पहुंचा, शैतान लई ने दिल में वसवसा डाला कि खुद हजरत को फरमा रहे या अल्लाह, और हमें फरमा रहे या जुनैद। तो फरमाना कि अरे नादान, अभी तो तू या जुनैद तक नहीं पहुंचा तो अल्लाह तक रसाई कैसे होगी? नाउज़ बिल्लाह। बरेलवी मौलाना रजा खान मलफूजात, हिस्सा नंबर अव्वल 97 सफा, ये बुक आना से जनाब शाया हुई है। तो जनाब जवाब दें कि ये कौन सी कुरान की आयत में ये बातें लिखी हुई हैं, और कौन सी सही हदीस में ये बातें लिखी हुई हैं, और कौन सी इज्मा उम्मत में ये बातें लिखी हुई हैं, और क़ियास शरई में बातें हैं। और हमें कुरान की आयत चाहिए, सही हदीस चाहिए, और इज्मा उम्मत से दलील चाहिए, और आइमा मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, आइमा मुज्तहिदीन से हवाला जात चाहिए। आपके बुजुर्गों ने जो कहानियां कराई हैं उस पर बात करें, कुरान सही हदीस से बात करें। और आप हमें आज पूरी दुनिया के सामने बताएंगे शाह साहब कि कुरान किसे कहते हैं, सही हदीस किसे कहते हैं? बोले जनाब। जी ठीक हो गया जी। अब 28 मिनट तक मेरे पास टाइम है। देखो ना, लिखीदा हुंदा है, नाल लिखीदा हुंदा है, नहीं तो बंदा मुकर जांदा हुंदा है। अच्छा,
ਤੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ नहीं करनी तो फिर इंज ही सही। मिर्जा जूनियर जेलमी कहता है कि मर्जियों की माओ को 4 शोहर मिलेंगे, मादुल इस्लाम की माँ को 4 शोहर मिलेंगे। वीडियो सुनो ते चस्का लवो, मजे लवो। हाँ जी, ए जवाब चाहिए, ए कुरान दी इच जवाब चाहिए। हाँ जी, मौजू ते तुसा करनी को नहीं ते चलो फिर अपने अपने मौजू ही सही। ए लो सुनो। औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ जी, मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि जनाब इमादुल इस्लाम साहब की वाइफ को और जनाब इनकी अम्मी मोहतरमा को 4 शोहर मिलेंगे अगर वो ख्वाहिश करेंगी। तो बताओ ओए कि वो अगर ख्वाहिश कर दी आपकी वालदा ने तो उनको 4 शोहर मिलेंगे कि नहीं? जवाब दियो, जवाब चाहिए। तोबा तोबा करा दिती ओए सोनिया तू अज मेरी, तोबा तोबा। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਸ ਲਵੋ। ਹੈਲੋ सुनो। हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें, उन्हें मुतलक औरतों का जिक्र किया है। औरतों के अंदर वो आपकी औरत भी आती है, आपकी बहन आती है, आपकी बीवी आती है, आपकी अम्मी आती है, आपकी जोजा आती है। औरतों की जब बात की है तो वो आपकी भी आती हैं। हाँ जी, तो इसका जवाब चाहिए सानू कुरान ते हदीस चो कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। हाँ जी, मेरा टाइम खत्म होने लगा ही है, बस है 3 सेकंड दो, शुरू करो। जनाब, आपको शर्म नहीं आती? आप किस किस्म के घटिया बंदे हैं मुफ्ती मुबशर शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, कि आप अंजीर मिर्जा को लेके आए हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अंजीर मिर्जा को ना लेके आए। मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको मानते ही नहीं हूं। मैं तो मानता हूं कुरान सही हदीस को। आए हाय 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 हाय। तो जनाब आओ गल करो। ਤੁਹਾਡੇ बाबे ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए जीसी रसूलुल्लाह। आए हाय हाय सबा सहिल। और जनाब जो आपने उस किताब झूठ बोला फवाइद सालिकीन पर, आपने खैर टॉपिक अब और है, आप टॉपिक पर आए। ठीक है, आपने कहा जी कादियानी तो हनफी हैं, लानत है कादियानियों पर भी और झूठ बोलने वालों पर भी। दूसरी बात, इस इबारत का मुझे जवाब चाहिए या जुनैद वाली, कि कितना बड़ा ये शिर्क किया। कुरान की कौन सी आयत में ये बात लिखी हुई है? ठीक है, ठीक है। और सही हदीस में कहां ये बात लिखी हुई है? ठीक है जनाब, ये जनाब इत्तेहाद उम्मत होगा। मेरा बरेली देवबंदी अहले हदीस शिया से इत्तेहाद उम्मत है, मगर इल्मी इख्तिलाफ के साथ साथ। आपने इतना बड़ा झूठ बोला, अंजीर मिर्जा को ले आए। अंजीर मिर्जा जाए बाढ़ में और आप भी जाओ बाढ़ में। मुझे कुरान की आयत चाहिए, सही हदीस चाहिए कि कहां ये वाकया लिखा हुआ है। या जुनैद कौन सी सही हदीस में है, इजमा उम्मत में है या क़ियास शरई में है? आइमा मुहद्दिसीन, आइमा मुहक्किकीन, आइमा मुज्तहिदीन, कहां ये बात लिखी हुई है? जवाब दें। कुरान सही हदीस है मुफ्ती मुबशर शाह जनाब। ये इन्होंने लेके गुलाम इधर हो, मैं इनको नहीं मानता ना। मैं अंजीर मिर्जा की बातों को मानता हूं, मैं अंजीर मिर्जा की किसी बात को नहीं मानता। अपने बाबे का दिफा करो मुबशर शाह, बात करें, वो अपने बुजुर्गों का दिफा करें और जवाब दें। अवाम जवाब मांग रही है आपसे, कौन सी कुरान की आयत में, कौन सी सही हदीस में, इजमा उम्मत में, क़ियास शरई में? टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, ठीक है, टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ यार। साल इदा हुंदा है ए हुण 32 मिनट तक मेरे को टाइम है। सही है, तुसां को नहीं दसे है। मिर्जा जूनियर जेल में कहता है अमादुल इस्लाम की माँ के 4 शोहर होने हैं। जवाब चाहिए मुझे कुरान दी। सब मैं तो कहना पे कुरान दी नाल गल करो जो आप दवो। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੱਢੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ
ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ करामत है, करामत सुनिया जो दी। ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने, ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले, ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, जिसका नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। हाँ 313 क्या अशरा मुबशरा और ये करामत जो इसकी है, ये साबित करो, पहले तारीफ करो करामत किसको कहते हैं, और बताओ ये तारीफ इसकी करामत की क्या, और कुरान के अंदर करामत का इकरार और इनकार ये साबित करना है, उसके बाद आगे गुफ्तगू करेंगे। समझ आई कि नहीं तो जल्दी जल्दी अपनी मां दे जिहड़ी है करामत ज़ाहिर कीती इन्ने ਉਹ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ पे करते हो, ड्रामा ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ हो, इल्जाम उल्टा लगा रहे हो मुफ्ती मुबशर शाह। आप, मैं तुम्हें कह जो रहा हूं कि मैं जिन्हें मिर्जा को नहीं मानता, मैं उसकी बातों को नहीं मानता, जिन्हें मिर्जा को कितने लाए हो बिच होने तो 10 मिनट कहने पे सो पहले कि जी कि ठीक है तो जिन्हें मिर्जा नहीं मानता, मैं जो बंदी शिया अहले हदीस को तो मानता, तो फिर क्या है? मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, कुरान सही हदीस का दाई हूं, अल्लाह के वजह से मुझे जवाब दें। आपके बुजुर्गों ने एक कहानी कराई है कि हर जमाने में गौस होता है, अस्तगफिरुल्लाह, बगैर गौस के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकते हैं। मौलाना अहमद रजा खान साहब ने फरमाया। मुझे बताएं कुरान की कौन सी आयत में ये बात लिखी हुई है, कौन सी सही हदीस में बात लिखी हुई है? इधर रेफरेंस दे देना, इन्होंने चुके सट्टो बाहर बंदियां नो, और कादियानियां नो चुके पटो सट्टो बाहर, कादियानियां ते भी लानत मैं पांदा सारे सामने, और इन्हां ते भी लानत पांदा। ए जितने भी तुसी गल्लां दसदे हो सब ते मैं लानत करदा। जनाब जवाब दियो कुरान की आयत से, हाँ सही हदीस से, हाँ जी, इजमा उम्मत से, इतिहास शरई से, 4 दलाले अरबा हैं। कुरान की आयत पढ़े, सही हदीस पढ़े, इजमा उम्मत से साबित करें कि आगे बुजुर्गों ने कहा है बगैर गौस के जमीन आसमान अस्तगफिरुल्लाह कायम नहीं रह सकती है। आप क्यों भाग रहे हो? आप अंजीर मिर्जा को क्यों लेके आ रहे हो? और मैं उसको मानता ही नहीं, ना उसकी बातों को मानता हूं, मैं तो कुरान सही हदीस को मानूंगा। जनाब बात करें इधर, आप भाग रहे हैं मौजू से, और अवाम आपको लितर मारेगी इल्मी कि मुबशर शाह ने बकवास की है, इस पर जवाब नहीं दे रहा, और वो गलत गंदियां और सेक्सियां गल्ला करता है 24 घंटे, जेड़ा उसका सोच है तो ज़हन है। ऐसे बंदे पर लानत होनी चाहिए जो कुरान की आयत अपने सही हदीस ना पेश कर सके बुजुर्गों के गलत बातों पर। जनाब जवाब दें, बोलें। ये टाइम खत्म हुआ है। अच्छा तो मेरे को हुन में 36 मिनट तक। अच्छा आप गालियां निकालने के ऊपर आ गए हैं आप, हाँ जी देख लें। फिर मैंने आपको कोई गाली नहीं निकाली मदुल इस्लाम साहब, समझ आई कि नहीं? मैं तो साफ साफ करके बात कर रहा हूँ, अब गालियों पे आ गए ना आप, हाँ जी गालियों। ये आखिरी हल होता है कादियानियों का भी और मर्दियों का, आखिरी हल ये गालियां, हाँ जी सही है, गालियां निकालें आप, सारी दुनिया देख रही है। लेकिन बात यह है कि मैं आपसे बात कैसे कर सकता हूं कि मैं सिर्फ कादियानियों से या मर्दियों से बात करता हूं, एचईएस दैरियों से करता हूं, हिंदू से ईसाइयों से करता हूं। तो आप जो दंदियां निकाल रहे हैं ना, ये दंदियां बड़ा कुछ बता रही है, क्या आप मुझे बताएंगे? अभी ये वीडियो जरा सुनो जरा, वो मैं आगे सवाल करता हूं। मैं इसीलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। Do you want to learn HVAC? मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम, ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या
अच्छा मेरा टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा जल्दी जल्दी बताना कि अपनी बाजी ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ 10 ਸਾਲ ਆ ਬੋਲ ਪੜੇ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ 38 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਕ ਧਾਂਦਲੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੈਕਸ ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਲ ਇਹ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਨ ਹੋਏ ਨਾ ਲਾਲ बाजी ने जरा पूछ के जरा वीडियो आगे सुनो जरा। सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं, यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से अब तो हाँ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਤੇ 2 ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਗੱਲ करनी है। गल कुरान दी इसकी होगी। अगर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो। हाँ पहले एजुकेट करना है भाई, ऐसा में बाद उधर कोई और कोई एजुकेट कर दे जो और कोई एजुकेट करेगा कब खराब हो जाना है सब कितना बोल भी एजुकेट करेगा कब खराब हो जाना है। ऐना वे इबादुल इस्लाम दी बाजी नूं कोई बोल भी घेर लवे ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸੈਕਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਹੀ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ? जी ओरल सैक्स तुम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ अरे कितने बेशरम आदमी हो आप लानत है तुम पर, अल्लाह माफ करे। मैंने कोई गाली आपको नहीं दी है। दूसरी बात है कि तुम बाजियों तक, मैं आपकी बहन के बारे में या आपकी वाइफ के बारे में या आपकी अम्मी जी के बारे में बात करूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा यार? मुफ्ती मोशर आप जवाब दो कि आपके बुजुर्गों ने कहा है कि जमाने में गौस होता है और बगैर गौस के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकती है। इसका कुरान की आयत से सही हदीस से जवाब दो। अंजीने मिर्जा की बातों को मैं नहीं मान रहा, मैं जो आपके कह जो रहा हूं। आपको शर्म नहीं आती? इतने बेशरम इंसान है, बजाय कि आप कुरान की आयत दो इधर, आप बुजुर्गों का अंधे मुकल्लिद हो आप। हाँ जी सही हदीस से जवाब दो, इजमा अहमद से जवाब दो। आप कहानियां करा रहे हैं यार, बेशरम आदमी है यार। दुख की बात है, मैं इधर बरेलवी अवाम को कहूंगा, खास करके उलमा को, बरेलवी उलमा को, कि मुबशर शाह साहब से सनद ले लें। अगर वैसे तो है को नहीं आपके पास सनद, मुझे बताया था मौलाना सईद असद साहब ने, बहुत हो गए कि ये बंदा इसके पास सनद नहीं है, ये ड्रामेबाज है। ये अल्फाज से मौलाना सईद असद साहब के फैसलाबाद वाले, ठीक है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो चिश्ती रसूला को नहीं मानते। तुसी मनदे हो तो तुसी गलत दिफा करते हो। मुझे जनाब जवाब दो, मुबशर शाह जमीन आसमान के बगैर जमीन वो जो है ना गौस वो नहीं हो रह सकते और उनके बगैर जो है जमीन आसमान का निजाम नहीं चल सकता। मुझे कुरान की आयत चाहिए, सही हदीस चाहिए और इंजीनियर मिर्जा ने लेके आना, इन्हू साइड ते करो, कुरान की आयत करो, पढ़ो, सही हदीस पढ़ो, ठीक है ना जनाब? ये ड्रामेबाजियां बंद करो और ये जो आप गलत बातें गालियां दे रहे हो ये खत्म करो। मुझे इल्मी बात करो मुझसे, कुरान की आयत दो, सही हदीस दो, ठीक है? अगर आप कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते तो दे दो जवाब कि जो मेरे पास कुरान की आयत नहीं है, ठीक है, सही हदीस नहीं है। आप गप्पे फजूल लगा रहे हो यार, जी तमाशा तो टाइम खत्म हो गया है, चुप हो जाइए। अच्छा यार हजे तक नहीं तुसां दस्सिया, तुसीं आंदे हो पे गालियां देना। मैं गाली केड़ी कड्डी है जी? वो आंदा है पिया औरतों को जनाब मिलेंगे 4 शोहर, तो मैं जे तुहाडी औरत दे बारे पुछ लिया तो गाली हो गई है कि यह मसला उन्हें किसी होर दियां औरतां वास्ते दसे है? दसो ना, दसे क्यों नहीं है? तो गोद च जाके तुसी बवो मिर्जे जूनियर जेलमी दी, तुसी किसी गल का भी जवाब ना दवो। हाँ जी चंगे मरदे ही हो यार, तुसी कमाल हो गया।
ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜਵਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ? ਕਰੋ ਸਾਬਤ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਆ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੰਦਾ करांगे, ਤੁਹਾਡੀਆਂ नहीं होंगी ਤੁਹਾਡੀਆਂ बाजा नहीं है? हमें बताओ। और मिर्जा जूनियर जेलमी की जो बेटी है रज्जो, उसके बारे में जो कह रहा है ये सुनो, जरा आगे सुनो। परेशान नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी, फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से, मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची पूरे पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। चल टाइम खत्म हुआ। जनाब आप इंजीनियर मिर्जा अली को लेकर आ रहे हो बीच में। मैं कह रहा हूँ मैं इंजीनियर मिर्जा अली से इख्तलाफ करता हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं उनका ब्लाइंड और फॉलोअर नहीं हूँ। आप ऐसी गलत बातें ना करें, मुझसे आप बात करें। जो मैंने आपसे सवाल किया कि बगैर जमीन आसमान के ये जो बातें लिखी हुई आपके बुजुर्गों ने कि गौस जो है गौस के बगैर जमीन आसमान नहीं रह सकते हैं, इसका कुरान की आयत मुझे पढ़ दें, सही हदीस बता दें। आप बजाय कि कुरान की आयत के सही हदीस बताने के, इल्मी बात करने के, आप इंजीनियर मिर्जा ने क्या छोड़े, इंजीनियर मिर्जा ने क्या छोड़े, इंजीनियर मिर्जा ने छाड़ दो, मैं उन्हें नहीं मानता। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं मैं उसको नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। और मौलाना सईद असद साहब ने आपके बारे में कहा ये बंदा मुफ्ती मुबशर मुफ्ती नहीं है, फिर भी मैं आपको मुफ्ती कह रहा हूं। मैं कहा जरा कोई गल नहीं यार, तो आप मुझे कुरान की आयत से बात करो, सही हदीस से जवाब दो। मैं तो लानत करता हूं हर उस बंदे के ऊपर जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ चलेगा, खा वो सुन्नी क्यों ना हो, यानी कि मुबशर शाह साहब जैसा क्यों ना हो, जो कि यूं कर रहे हैं। तो जनाब मैं तो कादियानियों पर लानत भेजता हूँ, मरज़इयों पर लानत भेजता हूँ, पूरी सुनो, पूरी कादियानियत पर, पूरी मरज़इयत पर, गोरशाही वालों पर सब मैं लानत भेजता हूँ। मुझे आज जवाब चाहिए मुबशर शाह कि कौन सी कुरान की आयत में ये लिखा हुआ है, नहीं तो मुझे बता दो, मैं किसी मुफ्ती राशिद साहब से मसला पूछ लूंगा। मुफ्ती राशिद साहब आपसे अच्छी बात कर सकते हैं, आपको शर्म ही नहीं आती, आप उधर चले जाते हो। जाए बाढ़ में इंजीनियर मिर्जा भी जाए बाढ़, आप मुझे कुरान की आयत दो, सही हदीस दो जी, है पुरानी आयत है, सही हदीस है। इंजीनियर मिर्जा ने क्या छोड़ा है, उन्हें क्या छोड़ा है? यार कमाल बात है यार, अजीब आलिम हो आप, कमाल है यार आप पर। टाइम खत्म होया, टाइम खत्म होया, वादू हो गया टाइम, वादू हो गया। अच्छा जी, नहीं फिर इंज ते ना होया, नाले ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕੋ ਪਵਾਇਆ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ जूनियर जेल में ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, और रज्जो दे अंडरवेयर सुनी जरा। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला, फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन है। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। हाँ ते ओने जेडी सेक्सी फिल्म बनाई है वेखी जे के नहीं? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਐ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ है। और जो तूने शुरली छोड़ी है ना कि वो क्या है इसका नाम है हनफी था, उसकी मैं ठुकाई कर दी है, वीडियो मेरी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर कि मिर्जा कादियानी हनफी था कि वो वाबी था। हाँ जी, समझ आई कि नहीं? वो उसके दलाइल में सारे वो दे आए हूँ। रकम लगी जल्दी बाजी को पूछ लिया कि जिदा तक दंदियां करना है पे पुछ ही लिया कि सैक्स अजे तक आया कि नहीं आया।
ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੈਕਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਸੈਕਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ टाइम खत्म हो जाए जनाब आपको शर्म नहीं आती है आपकी बीवी नहीं है आपकी माँ नहीं है मैं आपकी माँ और बेटी के बारे में ऐसी बात करूं कि सेक्स सिखाया उनको शर्म करो यार मुफ्ती मोशर अच्छा दूसरा झूठ बोला आपने कादियानी तो जो लानती हैं आपने पहले कहा कि वो सुन्नी था इसी वीडियो में इधर ही झूठ पकड़ा गया देख लो आवाम लानत है आप पर झूठों पर अल्लाह की लानत है आपने इस बंदर ने कहा वो सुन्नी था फिर कहता है वो हनफी नहीं था वो वहाबी है दुख की बात है यार झूठ बोला आपने शर्म नहीं आती बेशर्मो जालमो अच्छा चलो कोई बात नहीं ये तो अल्लाह आपसे पूछेगा दुनिया और आखिरत में आप उलमाए सू हैं हाय 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 हाँ जी जवाब दो कि बगैर होश के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकता अंजीर मिर्जा को मैं नहीं मानता ना मैं अंजीर मिर्जा की बातों को मानता हूँ ना मैं उसके इफ्कार को मानता हूँ ठीक हो गया सारी दुनिया के सामने मैं कह रहा हूँ ये जनाब मुझे जवाब दो कि बगैर होश के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकता मौलाना अहमद रजा खान साहब ने गाल कर छड़ी है कुरान की आयत चाहिए सही हदीस चाहिए अगर ना साबित किए ना वो शाह आपने आए पूरी बरेलवियत को आप बदनाम कराओगे पूरे पाकिस्तान के बरेलवियों को बदनाम कराओगे और देवबंदी भी आप पर यानी कि हंस रहे हैं वैसे वो तुफ करेंगे यार गाली नहीं करना आंदी आप कुरान की आयत दो सही हदीस दो गल इंजीनियर मिर्जा इंजीनियर जोड़ दो इंजीनियर मिर्जा मैं मनदी ना मैं गल्लां नूं मनदा इधर मेरे वाल देखो भरा हाँ सिर ना लो गल करो आया ना दाड़ थले जवाब दो कुरान की आयत है सही हदीस से भागना नहीं है चलो जी टाइम मेरा शुरू हो जाए लो जी इमादुल इस्लाम साहब कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को कहा भाई तुम कह ही नहीं सकते ये मिर्जा जूनियर जेल में ने तो तुम्हारी माओं के बारे में कहा है मुसलमानों की माओं के लिए तो नहीं कहा मर्दियों की माओं के लिए कहा है उन्होंने उसकी बेटी अपनी बेटियों के तुम्हारी बेटियों के बारे में कहा है जिसकी वो तुम जिसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हो वो तुम्हारे बारे में कहा है तो जा फोन कर लो भाई फोन कर देने पे माज साहब अपनी वालदा नू कर लो तो जी माज साहब फोन कर रहे हैं जनाब पूछ रहे हैं वालदा को के वो बाजी नू सेक्स डिसिप्लिन सिखाया कि नहीं कर लो जी फोन पूछ लो सुनो भाई सुनो फोन आ गया भाई हाँ जी बाजी ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ अच्छा बाजी ने कह छड़िया भाई फोन आ गया है जनाब मादुल इस्लाम साहब को कि अजे तक को नहीं सैक्स सिखाया ओनू फिर मौलवियां दे हवाले करो माशाल्लाह मौलवी सिखा दिंदे ने हेलो 10 साल दी जो कुड़ी हो जाए तो सैक्स सिखाओ इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट 10 साल की हो जाए बच्ची ते फौरी एजुकेट करो फोन करो उन्हें दोबारा कर सुनो और मैनू लगता है उन्हें 10 छड़े है उन्हीं मादुल इस्लाम साहब बताएंगे भाई बाजी नू सैक्स सिखाया कि नहीं इन्हां दे वालदैन ने यार खुद ही सिखा रहे हो मादुल इस्लाम साहब अपनी बाजी चलो टाइम हो गया यार आप शर्म करें आप जवाब नहीं दे सकते मैंने तारिक मीर साहब की तस्वीर से दिखाई थी उनके जो है स्टूडेंट का फोन आया फिर मैंने आपको भी तस्वीर दिखाई है जमालुद्दीन बगदादी साहब उनसे मेरा राब्ता है यकीन करें कि वो आपको तेरा खैर वो लानत भेज रहे हैं आप वैसे आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो मैं मुफ्ती राशिद साहब के पास चला जाता हूँ या
اور علماء کے پاس چلا جاتا ہوں. اگر آپ نے اس قسم کی بات کرنی ہے یار آپ کے اپنے سنی علماء، ویسے سنی تو نہیں ہو تسی، بریلوی ہو تے سنی تو میں ہوں الحمدللہ، جو آپ سنا کے سنی ٹنی ہے، میں اللہ کے فضل سے اصل میں بات یہ ہے میرے بھائی